that catalyst is a substance that speeds up or that change the speed of reaction by lowering the activation energy and without being consumed during the reaction. कैटलिस्ट के अंदर जनरली 3 प्रॉपर्टीज हम देखते हैं. नंबर 1, वो स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को. कैसे स्पीड अप करता है? नंबर 2 पॉइंट इज इट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी. और नंबर 3 इज कि जनाब वो ड्यूरिंग द रिएक्शन कंज्यूम नहीं होता. ड्यूरिंग द रिएक्शन कंज्यूम नहीं होता. तो 3 प्रॉपर्टीज जहां पर जमा हो जाएं, ऐड हो जाएं, आप कहते हैं कि दिस सब्सटेंस इज अ कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन बाय lowering down the activation energy and without being consumed. ये catalyst की basic property है. In the process of catalyzing a reaction is called catalysis. ये बात तो समझ में आती है? बिल्कुल सिंपल सी डिस्कशन है. The process of catalyzing a reaction is called catalysis. ठीक है जी मुबशिर भाई? जी सर. अब catalysis या catalyst 2 तरह का होता है बेटा. एक है होमोजीनस कैटलिस्ट और एक है हेट्रोजीनस कैटलिस्ट. सुना है ये आप लोगों ने? यस सर. जी. व्हाट इज होमोजीनस कैटलिस्ट? कौन बताएगा? It is when the state of the catalyst is the same as that of the reactant. Very good. Very good. When the state of the catalyst, when the physical state of the catalyst is same as that of reactant, when the catalyst, the state of the catalyst is same as that of reactant. For example, a very famous reaction from your syllabus of AS, contact process का याद करना बेटा. SO2 combines with O2. ठीक है? Combines with O2 to gives what? 2SO3, and this reaction was taking place in presence of vanadium pentoxide. Here you can see beta SO2 is a gas, O2 is a gas, and vanadium pentoxide is also a gas. ठीक है? So again, what is homogeneous catalyst or what is homogeneous catalyst is when the catalyst is in the same state as that of reactants, we call it, बोलो भाई, homogeneous catalysis. ठीक है? अब heterogeneous क्या होगी? तुक्का लगाओ हम्माद. So when the state is different. When the state of the catalyst is different from the state of the reactants. For example, again, बहुत आपने पढ़ा हुआ है O levels AS के अंदर, N2 plus 3H2 Haber's process याद करना जरा. And the catalyst there was iron to form NH3. Yes, the state of iron is क्या मुबशिर कैसी state होती है iron की? Solid sir. Solid. In N2 is a solid or a liquid? Gas. Gas है. अच्छा. और hydrogen? Gas है sir. तो आप क्या देखते हो यहाँ पर? The state of the catalyst is different from the state of the reactants. कोई confusion? No sir. So it means this is an example of heterogeneous catalysis and this is an example of homogeneous catalysis. अब सवाल ये है कि ये तो हमने AS में भी सुना था, अब यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? Basically यहाँ हम आपको बताएंगे कि exactly what is the difference of the mode of action of a homogeneous catalyst and a heterogeneous catalyst. देखो both are catalyst ना. आयरन भी अपने प्रोसेस का कैटलिस्ट है और वेनेडियम पेंटॉक्साइड भी अपने प्रोसेस का क्या है? कैटलिस्ट है. But the way by which they change the rate of reaction is different. The way by which या through which they change the rate of reaction is different. बात समझ में आ रही है? Both are catalyst, लेकिन जिस तरह से ये एक्ट कर रहे हैं वो तरीकेकार डिफरेंट है दोनों का. होमोजीनियस कैटलिस्ट अलग तरीके से एक्ट करता है और हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट जो है वो अलग तरीके से एक्ट करता है. ये बात समझ में आती है? Yes sir. अच्छा. अब नाउ
सवाल ये है कि भाई हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कैसे एक्ट करता है। तो हेट्रोजीनियस वाला काफी इजी सा डिस्कशन है, तो मैं क्विकली समझा देता हूं। देखो भाई हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कैसे काम करता है। लेट्स सपोज आयरन यहां पर ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड आयरन है, ठीक है, ये आयरन पीस है। एंड हियर वी हैव द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन and the molecules of hydrogen. Nitrogen, hydrogen, nitrogen, hydrogen. ठीक है बच्चे। नॉर्मली क्या हो रहा है, अगर मान लो कैटलिस्ट नहीं हो तो नॉर्मली क्या होता है दैट दीज पार्टिकल्स कोलाइड जस्ट ड्यू टू रैंडम चांस। क्या हुआ, आप सोचो एक कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो दे आर मूविंग, गैस है ना बेटा, तो क्या होगा, रैंडम मूवमेंट होगी, यस और नो? Yes, sir. Random movement होगी, and due to randomness they will collide. There is no other way, there is no other chance कि वो collide करें या ज्यादा collide करें, कम collide करें, they मतलब purely collide as a random chance, ठीक है। But what happens when catalyst iron is there? Basically the heterogeneous catalyst provides its surface area, क्या करता है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट अपनी सरफेस पर जब कोई देखो जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है आपने पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल किया है, सरफेस एरिया बढ़ा के इस्तेमाल किया है, तो अब उस कंटेनर के अंदर वो मौजूद है। होता क्या है कि जब मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं इस कैटलिस्ट के साथ, तो दिस कैटलिस्ट प्रोवाइड्स इट्स सरफेस एरिया एंड इट मेक्स अ टेम्पररी बॉन्डिंग, a loose connection with the upcoming with the molecule that is colliding on its surface. Listen again, जो आपका कैटलिस्ट है, मैं डायग्राम में भी शो कर रहा हूं, इमेजिन करो कि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आ रहा था, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल वैसे आता, टकराता, इधर उधर चला जाता, कैटलिस्ट क्या करता है, इसे अपनी सरफेस पे बाइंड कर लेता है। कैटलिस्ट क्या कर रहा है, इसे अपनी सरफेस पे क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। इसी तरह नाइट्रोजन आया, बाइंड कर लिया, इसी तरह हाइड्रोजन आया, बाइंड कर लिया। अब बाइंडिंग से हो क्या रहा है, बाइंडिंग से हो ये रहा है कि जो रैंडमनेस है ना वो कम होती जा रही है। जरा इमेजिन करो कि पहले वो बिल्कुल रैंडम कोलाइड कर रहे थे, अब क्या है कि जब कैटलिस्ट आपने यूज किया है और कैटलिस्ट भी ज्यादा सरफेस एरिया के साथ यूज किया है, तो कंटेनर में ज्यादातर सरफेस एरिया को कैटलिस्ट क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और इन अदर वर्ड्स क्या हो रहा है कि जो कंटेनर की ज्यादातर सरफेस है, जो कैटलिस्ट जिसको कवर कर रहा है, वहां पर वो मॉलिक्यूल्स को अपने साथ क्या करा रहा है, मुबश्शिर बाइंड करा रहा है। जैसे जैसे बाइंडिंग होती जा रही है, अब बाइंडिंग होने से क्या हुआ कि रैंडमनेस, जो बिल्कुल एक चांस था कोलिजन होने का, वो कम होता जा रहा है। बल्कि उसकी जगह क्या होगा कि आप इमेजिन करो कि यहाँ पूरी सरफेस पर ये मॉलिक्यूल्स बाइंड हुए हैं। नाउ अब इस सरफेस पर चूंकि अच्छी खासी बाइंडिंग हुई भी है, तो लेट्स सपोज यहाँ पर अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आके टकराता है, तो दिस सरफेस हैज ऑलरेडी गॉट लॉट ऑफ हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कोलिजन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन आके टकराता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आके टकराता है, तो हम क्या देखेंगे, कोलिजन हो जाएगा। हो क्या रहा है कि अगर सरफेस एरिया पर अटैचमेंट नहीं हो रही थी, तो पहले इट वाज ड्यू टू द कोलिजन वाज ड्यू टू अ चांस। जब आप सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं ऑफ अ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट टेम्परेरीली बाइंड कर लेता है स्पीशीज को अपनी तरफ, जिससे क्या होता है, एक पूरी सरफेस क्रिएट हो जाती है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की। और अब उस सरफेस पर जैसे ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके टकराएगा, तो दैट collision will result in form of a reaction, and that is the mechanism by which a heterogeneous catalyst increases the chances of successive collision. और AS chemistry में आप पढ़ के आए थे कि anything that increases the number of collision or chances of successive collision will increase the rate of reaction. पढ़ा था ना? Yes, sir. Let me conclude exactly how heterogeneous catalyst is working. Heterogeneous catalyst provides its surface area. इसीलिए अगर आपको याद हो तो आप उसको सॉलिड ब्लॉक की फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया कम होगा। आपको उसे ऐसी फॉर्म में इस्तेमाल करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सके वो। तो वो कौन सी फॉर्म होती है, पाउडर्ड फॉर्म। तो बेसिकली व्हेन यू यूज पाउडर्ड आयरन, तो पाउडर्ड आयरन प्रोवाइड्स ह्यूज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। वो क्या करता है, बजाय इसके कि वो बाय चांस कोलाइड करें, वो अपने साथ मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता जाता है और फिर
पूरी सरफेस क्रिएट कर देता है जिस पर मॉलिक्यूल्स बाइंड हुए हैं। और अब इस पर कोई भी मॉलिक्यूल आकर बाइंड होगा, सरफेस में तो कोलाइड होंगे ना भाई, मॉलिक्यूल से कोलाइड करने का चांस कम होता है, लेकिन सरफेस से तो बहरहाल मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होते हैं। तो दैट if that surface is now completely coated with reacting molecules, तो अब मॉलिक्यूल जब सरफेस पर टकराएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पहले से ज्यादा हो जाएंगे, and that results in the increased rate of reaction because that ultimately increases the number of successive collisions. So that is the mechanism exactly how heterogeneous catalyst speeds up the reaction. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आई बात समझ में? आ गई समझ सर। आ गई। आ गई सर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एग्जैक्टली हाउ दिस वर्क, तो एक जुमले में जवाब क्या है? इट प्रोवाइड्स इट्स सरफेस एरिया temporarily bind the reacting molecules over it, which covers the surface in a way के जो molecules when now collide with the surface, actually they are not colliding with the surface, they are colliding with the temporarily binded molecules, and therefore the number of collisions and the chances of successive collision जो है वो increase हो जाता है, and that results in the increased rate of reaction. इसको नोट कर लो अपने पास। मुबश्शिर समझ में आया? पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? जी सर। नोट कर लो अपने पास, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लो। अच्छा, इसमें एक चीज और भी होती है कि जब कोई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स बेटा कैटलिस्ट से बाइंड होता है ना, तो जब वो टेम्परेरीली कैटलिस्ट से बॉन्ड बनाता है तो जो उसके अपने बॉन्ड्स होते हैं ना वो कमजोर हो जाते हैं। एक चूंकि जब आप देखते हैं कि पुराने बॉन्ड, नए बॉन्ड कब बनते हैं? जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं। तो ऑल्दो कैटलिस्ट इज नॉट बाइंडिंग विद द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल परमानेंटली, लेकिन कैटलिस्ट जब लूजली बाइंड करता है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल से, तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है उसके अपने बॉन्ड मुकम्मल टूटते तो नहीं है लेकिन कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब कोई और मॉलिक्यूल आकर उससे कोलाइड करेगा तो रिएक्शन और ज्यादा क्विक हो जाएगा। बात समझ में आई? दो बातें नोट करना अपने पास, एक तो सरफेस एरिया प्रोवाइड कर दिया, दूसरा ड्यू टू टेम्पररी बाइंडिंग ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल to the surface of the catalyst or with the surface of the catalyst, the bonds within the reacting molecules also weakens, which plays its role when the collision takes place. जब कोलिजन होगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो क्योंकि बॉन्ड जो है वो वीक हो चुके हैं अंदरूनी तौर पर, और जो कैटलिस्ट से बॉन्ड बना है वो भी वीक है, तो वो बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएंगे और रिएक्शन के लिए फैसिलिटेट करेंगे।